हेलो एंड वेलकम टू श्री राम आईएएस यूपीएससी प्रेप। आप सबका स्वागत है श्री राम आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। और हम आज इस डिस्कशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक स्कीम डिस्कस करने वाले हैं। इस स्कीम का नाम है द स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंटर्ड रेयर अर्थ permanent magnets. Understood? So this scheme was recently launched and cabinet gave its nod to the scheme. Now what does this mean and why are we allocating 7,280 crore rupees to such an initiative? इतना सारा पैसा हम रेयर अर्थ मैग्नेट्स और आई वुड से सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स क्यों बनाना चाहते हैं? REPMs. Why are we developing them? What is their significance? Has UPSC also understood that critical minerals are important, and that is why UPSC asked a question in 2025 prelims about the production and import dependence of India in terms of critical minerals, how India is sourcing these critical minerals, how India is actually performing on those critical minerals. That was the question which UPSC asked in 2025. Therefore, in order to develop this sector and critical minerals to which China has a strong hold, we have launched this scheme. Before we go deep into the discussion, what are the mechanism or how this scheme will allocate money based on the performance, based on the production and based on the subsidies for establishing such value chains. We will also discuss what is sintering of minerals over these magnets, how the magnets are sintered, what is the process, what all rare earth elements are used, to produce sintered magnets, and then what all elements are used to form alloys of these rare earth magnets, and then these alloys are converted into sintered sintered products or sintered magnets. Now before we go into deep discussion, I just want to highlight over here that if you still are facing problems with your UPSC preparation, what you need to do is simply just scan this QR code and get yourself a good mentor at Shri Ram IAS. Once you talk to mentors, they will solve your problems about your UPSC preparation. They will help you to strategize better, they will help you to manage your time better, and they will help you to understand the demand of this exam. How to prepare, what is the role of NCERTs and advanced books, how test series can be helpful, and how to analyze PYQs. This all will be discussed in these sessions with your mentors. So do not hesitate and I would say align your preparation before it's too late. Understood? Therefore, you can also join this Telegram channel in which you will find all the important documents, PYQs and tests and daily MCQs which Shri Ram IAS does post on the Telegram channel. You just need to join this Telegram channel and then follow the channel accordingly. Now, before we go into detail, I just want to highlight over here. Last year also I conducted some of the videos, I conducted some of the marathon sessions, out of which we found that from Indian economic perspective, 7 questions out of 20 questions were directly from these 2 marathons which we conducted last year. So you should follow these videos and you will see that the questions will be directly asked and you will get the hit rate. ठीक है, आपको एटलीस्ट 5-6 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे हमारे इन वीडियो से, मतलब मेरी पर्टिकुलरली. नाउ अंडरस्टैंड दिस. ये जो स्कीम है, द स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स, कैबिनेट हैज अप्रूव्ड दिस स्कीम टू एस्टैब्लिश इंडिया एज अ ग्लोबल प्लेयर इन रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स manufacturing. So therefore, what is the main objective here is to manufacture rare earth permanent magnets. Now, why do we need to invest that much and what is the total investment? 7,280 crore rupees. And what is the production target? Target is to produce around 6,000 metric tons per annum. Integrated REPM manufacturing capacity, इतनी capacity हमें develop करनी है so that we develop self-reliance for India. We reduce the imports, we establish global competitiveness in the production of rare earth magnets.
सिंपल है ये, मतलब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये 3 ऑब्जेक्टिव्स है, इनको ऐसे ही याद रखना है। ये नंबर्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ 6000 वाला जो नंबर है ये याद रखना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि टारगेट एक स्कीम का ज़रूरी है। पैसा अगर आप याद नहीं भी रखोगे तब भी चलेगा, ठीक है। चलो नाउ अंडरस्टैंड दिस, क्यों हमें ऐसा करना है। 2 ऑब्जेक्टिव्स, फर्स्ट टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ आत्मनिर्भर भारत, एंड सेकेंड टू एस्टैब्लिश नेट जीरो और टू अचीव द नेट जीरो स्टेटस बाय 2070। नाउ रेयर अर्थ मैग्नेट्स हमें नेट जीरो ये अचीव करने में हेल्प कैसे करेंगे, बिकॉज दे हेल्प अस इन ग्रीन टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सबसे ज्यादा यूज होते हैं यही रेयर अर्थ मैग्नेट्स, ठीक है। अब जब ये मैग्नेट्स का प्रोडक्शन होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बढ़ेगा, उससे फॉसिल फ्यूल का कंजप्शन कम होगा, उससे हमारा CO2 का एमिशन कम होगा। जितना हमारा एमिशन कम होगा उतना ही हम नेट जीरो की तरफ ज्यादा चले जाएंगे। अंडरस्टूड। सो 2 ऑब्जेक्टिव्स, आत्मनिर्भर भारत एंड आत्मनिर्भरता एंड द नेट जीरो 2070, ये 2 ऑब्जेक्टिव्स याद रखने हैं। क्लियर है यहां तक। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स। ये कौन से मैग्नेट्स होते हैं, इनका काम क्या है। सिंपल, दे आर अ टाइप ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स मेड फ्रॉम अलॉयज ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। अलॉयज मतलब क्या है इस चीज का, दे हैव एक्सेप्शनल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, हाई एनर्जी डेंसिटी एंड सुपीरियर परफॉर्मेंस। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज हम क्या करते हैं, एक सिंपल रेयर अर्थ एलिमेंट जैसे नियोडीमियम एक रेयर अर्थ एलिमेंट है, रेयर अर्थ एलिमेंट, ठीक है, REE। नाउ इसका अलॉय बनेगा किसके साथ, विद आयरन एंड बोरॉन। ये 2 मिनरल्स, मेटल्स, इसके साथ मिला के एक अलॉय बनेगा। नाउ दिस अलॉय विल बी लेटर ऑन कन्वर्टेड एंड सिंटर्ड, दिस विल बी सिंटर्ड and then it will be converted into the permanent magnet or sintered rare earth permanent magnet, ठीक है। या फिर samarium और samarium plus cobalt, this alloy is also converted into, these are the most common types of rare earth magnet or magnet materials, ठीक है। they are extremely strong, they have strong power and that is why they are important. These neomagnets, particularly neodymium magnets, they are converted by these 3: boron, iron and neodymium. Samarium and cobalt is a compound of, and then the samarium cobalt rare earth magnet is formed. Understood यहाँ तक कि बनता कैसे है rare earth magnet, समझ में आ गया। Now one more thing which you need to understand, what are sintered magnets। अब rare earth magnet बन गया, but sintered magnet क्या है। So what we do in sintered magnets, they are actually permanent magnets made by compressing the magnetic powder, and then heating the magnetic powder, and then at the higher temperatures, which is below the melting point, so that they fuse together, develop a strong material, and then they are commercially available permanent magnets, especially the sintered ones, neodymium, iron and boron magnet, ठीक है। सो सिंपल हमने क्या सीखा अभी तक कि हमने क्या किया, एक रेयर अर्थ एलिमेंट जैसे नियोडीमियम, उसका अलॉय जिसमें नियोडीमियम, आयरन एंड बोरॉन तीनों को मिलाया, एंड देन द मैग्नेटिक पाउडर इज क्रश्ड, फर्स्ट क्रश्ड then pressed together so that the strength of the magnet gets improved, and then at a higher temperature they are melted so that it becomes highly dense form, and then it is called as sintered magnet. Understood? Very simple process. Raw material samarium, cobalt, iron, ये सब चीजें, zirconium, हमने ये रॉ मटेरियल लिया, इस रॉ मटेरियल के साथ एक अलॉय बनाया और प्लस इसको मेल्ट किया या फिर इसको क्रश कर दिया, क्रशिंग, मेल्टिंग, एंड आफ्टर दैट इट इज डन थ्रू बॉल मिलिंग, ठीक है, बॉल्स में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद प्रेस किया जाता है, एंड देन दिस गेट्स थ्रू सिंटरिंग, ग्राइंडिंग, लैपिंग, होनिंग एंड और वायरिडियम. These are the techniques of forming the permanent or sintered permanent rare earth magnets. And last में इसको मैग्नेटाइज किया जाता है and then we form these REPMs. ठीक है, ये प्रोसेस याद रखना है. इस प्रोसेस में बस 2-3 चीजें याद रखनी है, दैट क्रशिंग, बॉल मिलिंग, सिंटरिंग, लैपिंग, होनिंग.
ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो हम यूज करते हैं टू फॉर्म सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स। क्यों? क्योंकि यूपीएससी यूजुअली ऐसी टर्म्स को यूज कर लेता है, और ये पिछले 2-3 साल का ही फॉर्मेट है, पिछले 2-3 साल से ही ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ऐसी 5-6 टर्म्स को या 3-4 टर्म्स को यूपीएससी एक लाइन में पूछेगा, दैट द टर्म्स लाइक ABCDE are usually seen in news. In what perspective are they seen? Or in which context are the terms given below seen in news? बस वहां पे देखना है कि अब ये जो टर्म्स पूछी जा रही है, they are used for sintering of magnets. ठीक है, प्रीलिम्स के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है, sintering of rare earth magnets. ठीक है, डन है यहां तक? चलो, now why are they important? Because they have exceptional strength, they are rare earth alloys, and lastly, the critical application of these rare earth magnets make them important. They are essential for electric vehicles, renewable energy, electronics, aerospace and defense systems. और अगर हमने ये सारे sintered magnets बनाए तो that will reduce our dependence on China also. And that dependence on China of the globe, not only India, even global level पे सारी countries US, UK are dependent on China. And that is why G2 अभी डिस्कोर्स में आया था, ठीक है, वो इसीलिए आया था बिकॉज ऑफ द डिपेंडेंस ऑफ यूएस ऑन चाइना। फर्दर, दे आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फॉर एफिशिएंट पावर कन्वर्जन, दे आर यूज्ड इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड एरोस्पेस एंड डिफेंस। इंडियाज ग्रोइंग डिमांड ऑफ दीज रेयर अर्थ मैग्नेट्स, क्योंकि इंडियाज डिमांड विल बी डबलिंग और वी विल हैव 2 times मोर डिमांड ऑफ दीज मैग्नेट्स बाय 2030, क्योंकि हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करना है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का और बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स का, चाहे वो सोलर एनर्जी हो या बाकी सारी एनर्जीज हो। फर्दर, हम एक्चुअल में कितना इंपोर्ट कर रहे हैं? 53,000 टन्स 2024-25 में हमने इंपोर्ट किए हैं। तो ये इंपोर्ट डिपेंडेंस को हमें कम करना है, और जब इस इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम करेंगे तभी तो जाके हमारा इंपोर्ट बिल रिड्यूस होगा और तभी हमारा डिपेंडेंस रिड्यूस होगा चाइना के ऊपर। Why? Because China holds 90% of the production, और द प्रोडक्शन जितना भी प्रोसेसिंग होता है और प्रोडक्शन होता है और मार्केटेबल जो ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स है उसका 90% कंट्रोल कौन करता है? चाइना। अंडरस्टूड यहाँ तक? अब ये जो स्कीम हमने लॉन्च की है, प्रमोशन और स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ सिंटर्ड रेयर अर्थ मैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट्स, इस स्कीम के अंदर 89% ऑफ द फंडिंग विल बी लिंक्ड टू सेल्स, कि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनेंगे वो जितना सेल करेंगे, एडेड सेल, जैसे हमने लास्ट टाइम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लेके आए थे, PLI स्कीम, ठीक है, और वो क्वेश्चन भी आ गया था। PLI स्कीम के अंदर क्या था कि जितनी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन के ऊपर उतना ही रिबेट मिलेगा टैक्स में और उतने ही इंसेंटिव्स मिलेंगे। दैट वाज द स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। वैसे ही एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम किस लिए थी? कि जितना आप नया एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करोगे उतने ही बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। ये उनके लिए था जो ऑलरेडी एम्प्लॉयर्स हैं, ठीक है। सो दीज स्कीम्स, वैसे ही ये वाली स्कीम, दिस विल हेल्प दोज हु आर इंक्रीजिंग द सेल्स ऑफ दीज सिंटर्ड रेयर अर्थ मैग्नेट्स। अब किसी ने यूनिट एस्टैब्लिश किया तो यूनिट एस्टैब्लिश करते टाइम उसको सब्सिडी मिल जाएगी, कैपिटल सब्सिडी, ठीक है। 750 करोड़ रुपीस उसके लिए रखा गया है ताकि सब्सिडीज, इनिशियल सब्सिडीज दी जाए। और ये किन को मिलेगा? देयर आर अराउंड 5 बेनिफिशियरीज वाया ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बिडिंग हु विल रिसीव अप टू 1200 मेट्रिक टन्स पर एनम कैपेसिटी। अगर इनकी है तब जाके इनको स्टार्टिंग में, अगर ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे सब्सिडी मिलेगी। सेकंड, जितनी ज्यादा सेल होगी उतना ही सब्सिडी भी मिलेगा। तो ये स्कीम जो है ये पहले 2 साल का गेस्टेशन पीरियड देती है एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, और उसके बाद व्हाट इज गेस्टेशन, दिस गेस्टेशन पीरियड और जेस्टेशन पीरियड, बेसिकली इट इज गेस्टेशन पीरियड। तो ये क्यों है? सो दैट द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट्स प्रोडक्शन, एंड प्रोडक्शन के बाद जब वो सेल करेगा तो उस सेल के ऊपर सब्सिडी मिल जाएगी, ठीक है, ताकि ये जो प्रोडक्शन हो रही है उस गुड को मार्केटेबल भी बनाया जा सके। अंडरस्टूड यहाँ तक? कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे होती है? सिंपल, जो हमने पहले देखा, पहले रेयर अर्थ ऑक्साइड्स एंड देन मेटल प्रोडक्शन, अलॉय क्रिएशन एंड लास्ट में सिंटरिंग, ठीक है, और फाइनली सिंटर्ड मैग्नेट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं।
4 सिंपल स्टेप्स जिसमें ये सिंटर्ड मैग्नेट बनता है। प्राइमरी प्रोडक्शन में सबसे पहले जो हमने यहाँ पे देखा, रेयर अर्थ ऑक्साइड्स लिए जाते हैं और इन रेयर अर्थ ऑक्साइड से बनता है एक लाइट रेयर अर्थ, ठीक है, जैसे नियोडीमियम बनाया या पार्सियोडीमियम बनाया, ठीक है। दिस इज रेयर अर्थ मेटल और रेयर अर्थ नॉट मैग्नेट, रेयर अर्थ एलिमेंट मैंने बोला था पहले भी। रेयर अर्थ एलिमेंट से फिर बनेगा हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट जैसे डिस्पोर्सियम और टर्बियम विच एनहांसेस हाई टेम्परेचर परफॉर्मेंस, एंड देन इसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू अलॉयज बाय एडिंग आयरन एंड बोरॉन, एंड ये अलॉयज बनाने के बाद फिर मैग्नेट बनता है। नाउ रिमेंबर दैट यूपीएससी ने लास्ट टाइम वो क्वेश्चन पूछा था अबाउट टॉयलेटरीज, दैट दीज आर द केमिकल्स, वेयर आर दे फाउंड, वेयर डू यू यूजुअली फाइंड दीज केमिकल्स, और नॉर्मली वोल्केनिक इरप्शन से कौन कौन सी चीज निकलती है, या फिर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन AQI, या फिर एयर पोल्यूशन में कौन कौन सी चीजें पोल्यूटेंट्स हैं, कार एग्जॉस्ट से कौन कौन सी चीजें निकलती है, ये सारी चीजें यूपीएससी पूछता है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ये टर्म्स याद रखनी है, नियोडीमियम, पार्सियोडीमियम, डिस्पोर्सियम, टर्बियम, ये क्या है, व्हाट आर दीज, दे आर रेयर अर्थ एलिमेंट्स, बस इतना याद रखना है, ठीक है, दे आर रेयर अर्थ एलिमेंट्स, बस इतना ही याद रखना है, एंड देन उसका एलॉय बन जाता है जैसे मैंने अभी बोला था, ठीक है। नियोडीमियम प्लस आयरन प्लस बोरान, ये जब तीनों चीजें मिल जाएंगी तब जाके नियो रेयर अर्थ मैग्नेट बनेगा, दैट विल बी एन एलॉय, ठीक है। Understood? China's chokehold, as I said, 90% of the production or 90% of manufacturing and processing capacity is with China. Export control, China imposed the export restrictions recently on rare earth magnets on India also and to USA also. कि US की तरफ जो एक्सपोर्ट्स जा रहे थे चाइना के, उनको भी रोक दिया था और इंडिया की तरफ जो जा रहे थे उनको भी रोक दिया था। That is how China plays its part and uses its cards wisely. Therefore, अगर हमने इस चीज को डेवलप किया तो दिस विल हेल्प अस टू गेन द जियोपॉलिटिकल लेवरेज इन दिस सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। इंडिया इंपोर्ट्स 90% और मोर देन 90% ऑफ इट्स क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है, 53,000 टन्स, जो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है। डिमांड हमारी डोमेस्टिक लेवल पे बढ़ रही है, जियोपॉलिटिकल रिस्क, क्योंकि ओवर डिपेंडेंस ऑन सिंगल सोर्स ऑलवेज इज रिस्की, सप्लाई चेन डिसरप्शंस की वजह से हो सकता है कल को हमारा फिर प्रोडक्शन रुक जाए। हमने अगर ऑटोमोबाइल्स में या फार्मा सेक्टर में अपनी इंडस्ट्री डेवलप कर ली, ठीक है, फॉर एग्जांपल फार्मा सेक्टर में मेडिसिन की इंडस्ट्री चल रही है, इंडिया इज नोन एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, बट 70% ऑफ द APIs, दैट इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, दे वेर बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना, ठीक है, समझ में आ गया। नाउ इंडिया इटसेल्फ वाज डिपेंडेंट ऑन चाइना टिल द टाइम वी स्टार्टेड डेवलपिंग APIs। फर्दर वैसे ही अगर हमने कल को इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्रीज बना भी दी, पर तब भी हमारे रेयर अर्थ मैग्नेट्स चाइना से ही आएंगे, और जब वहाँ से नहीं आ रहे हैं तो सप्लाई चेन डिसरप्शन होगा। सप्लाई चेन डिसरप्शन होगा, जो ऑर्डर्स हमने लिए होंगे वो मैन्युफैक्चर ही नहीं हो पाएंगे, वो डिलीवर ही नहीं हो पाएंगे, तो पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन विल गेट डिसरप्टेड। दैट इज वाई इंडिया नीड्स टू डेवलप इट डोमेस्टिकली, ठीक है। लास्ट में वाई, बिकॉज रियलिटी चेक जरूरी है। वी हैव जीरो कमर्शियल स्केल REPMs, अभी तक हमारे पास इनका मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है। लिमिटेड रेयर अर्थ ऑक्साइड प्रोडक्शन, और अगर आपको याद हो क्रिटिकल मिनरल्स वाला जो क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था, उस क्वेश्चन के एक स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ था दैट इंडिया ने अभी रिसेंटली 30 क्रिटिकल मिनरल्स को क्या किया है, नोटिफाई किया है और आइडेंटिफाई किया है। दूसरा लिखा था इंडिया इज अबंडेंट इन ऑल ऑफ दीज क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया था। नाउ सी, अब अगर हमें ये पता होता दैट दिस इज द पॉइंट, और अगर हमें बस इतना पता होता दैट वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना 90% फॉर क्रिटिकल मिनरल्स, वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर रेयर अर्थ मैग्नेट्स, तब तो हम इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे पाते, ठीक है, समझ में आ गया। नो डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड इंडिया का जो अभी का आउटपुट है वो बहुत कम है, इसीलिए इंडिया हैज टेकन मल्टीपल स्टेप्स। जैसे 2023 में हमने 30 क्रिटिकल मिनरल्स को डेजिग्नेट कर दिया था, और उसके बाद हमने सेंटर ने एक 34 ब्लॉक्स का ऑक्शन भी किया था अंडर MMDRA एक्ट,
ठीक है। फर्दर हमने क्वाड इनिशिएटिव के अंदर इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ कोऑपरेट किया किसके ऊपर? क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव के ऊपर, ठीक है। दिस इनिशिएटिव वाज आल्सो लॉन्च्ड। 2024 से लेके 31 तक हमारा एक गोल है, दैट इज नेशनल मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन फॉर सप्लाई चेन सिक्योरिटी, एंड इसके अंदर द एलोकेशन इज ऑफ 16,300 crores. So these are the key steps or measures which are taken at the national level, ठीक है। Further, we have also signed अभी recently G7 एक्शन प्लान, और इंडिया ने इसको एंडोर्स भी किया सो दैट क्रिटिकल मिनरल एक्शन प्लान ग्लोबल लेवल पे इंप्लीमेंट किया जाए। काबिल which is a PSU is currently holding the lithium blocks in Argentina in the South American ABC triangle, ठीक है। अगर आप सीए स्टूडेंट हो तो आप मुझे बताओ ये ABC ट्राइंगल क्या है, ठीक है। साउथ अमेरिका में ये ABC ट्राइंगल क्या है ये बताओ मुझे, कौन कौन सी कंट्री आती है ABC ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, या लिथियम ट्राइंगल जिसको बोलते हैं उसमें कौन कौन सी कंट्री आती है। सो देयरफॉर द स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट ऑफ दीज REPMs वी हैव डिस्कस्ड इट एंटायरली। दिस विल हेल्प अस द इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग, geopolitical resilience, technology advancement, and will help us to achieve the goal of Viksit Bharat by 2047. With this, the last में जो आपको याद रखना है, ठीक है, थोड़े बहुत फैक्ट्स इस स्कीम से रिलेटेड और थोड़ी बहुत चीज़ें मार्केट से रिलेटेड, ठीक है, ताकि आप अपने आंसर में इन चीज़ों को कोट कर पाओ। डन। विद दिस आई टेक अ लीव फ्रॉम ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन टू द सेशन। आपको कोई भी और क्वेश्चन पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू। जय हिंद।